ग्लेनी ईगल्स अस्पताल में फूड इज मेडिसिन सत्र के साथ खास अभियान का आयोजन। हॉस्पिटल ने फूड इज मेडिसिन थीम पर एक विशेष पहल का आयोजन किया। इस अभियान में सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर, साइरस ब्रोचा, कुणाल विजयकर, डॉक्टर सुहास अवचट और रूपा नाबर शामिल हुए थे। मुंबई वर्ल्ड लिवर डे के अवसर पर परेल स्थित ग्लेनी ईगल्स अस्पताल में फूड इज मेडिसिन नामक एक अभियान का आयोजन किया गया था। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम का उद्देश्य पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर, साइरस ब्रोचा, कुणाल विजयकर, डॉक्टर सुहास अवचट, रूपा नाबर और डॉक्टर की टीम उपस्थित थी। सदर स्थिति में सभी आयु वर्ग के लोगों में लिवर से संबंधी बीमारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जीवन शैली में बदलाव और पौष्टिक आहार का सेवन न करना इसका मुख्य कारण है। कई बार थकान, पीलिया, सूजन और पेट दर्द जैसे लक्षण अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, जिससे फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ग्लेनी ईगल्स अस्पताल के पैक्रियास एंड लिवर ट्रांसप्लांट HPB सर्जरी निदेशक डॉक्टर अनुराग श्रीमाल ने कहा कि वर्तमान में 23 से 30 वर्ष के युवाओं में फैटी लिवर की समस्या बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण लगातार मीठे, तले भुने, जंक, डिब्बा बंद और प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि लोग अपनी खाने की आदतों पर ध्यान दें। Also, पैसा नहीं लेता तो बोलना पड़ेगा। No, really, he's really what he's done is not. We cannot pay him back. If I would give him Kunal's flat otherwise immediately. But we are here to talk about the whole liver clinic coming of age and also the liver situation. Want to just say from my side before we hand it over to others, I stopped drinking 2015 alcohol, so I'm no longer a patient of yours. I shouldn't be at least. And I hope to give up non-veg one day. I'm an animal lover, so that's coming next. So I should be in the completely in the safe zone. Of course, आपको restaurant में क्या करेगा सर? So sad. What life is this? Only vegetarian food, no alcohol, nothing. Also staying at home with the same wife. That's kind of. By the way, that's a very good way to keep your liver fit. I'm sure Dr. Kalal, who's a holistic thinker like that, will agree. A good marriage is very important for a good liver. And that's why me and my wife, we go out twice a week. I go Monday, Wednesday, she goes Tuesday, Thursday. We go. Rocky. Now, Kunal, sorry. Sir, it's the definition of good marriage. You use the word good marriage, so you have to define it now. मेरे को कुछ नहीं मालूम सर. I'm not even होश में नहीं है. No, I just like get through it. Second exam. Good marriage is oxymoron. Either you are good or either you are married. In fact, after marrying a customs officer, I've realized that in many countries, the punishment for shoplifting is marriage. I think all the frustrated males, no matter how educated, always come to the front row. We're taking a noble issue about liver and helping people live better lives, and look at what we're doing. The frustration and anger of the person in 20 years of marriage coming out. Ladies, please feel free to say your points also. Huh? We get away with giving all our versions. Yeah. Same version? No, pass it the mic. It's the same version for the women also. They just keep quiet and they just nod their head. So it's the same. And then a good marriage is difficult for us too. It's an oxymoron. Good, yeah, marriage. Kunal's the only unmarried person here. He's a 61-year-old virgin. So nice to see. I mean, I'm so proud. Because Sanskrit और परंपरा में आजकल ऐसा है. So sweet. Would you like to start with your official conversation? Yeah, no, I'm here thanks to Dr. Kalal again. I happen to be his patient, not for the liver though, but for the rest of the insides completely. Everything is in a bit of better shape. He's also been instrumental in getting me to stop drinking, which is important, and I haven't drunk for 5 or 6 years now, which is, it shows in all the results that I occasionally test for. But we're here to celebrate World Liver Day, and I must say that while listening to all the conversations over here, the amount of liver I've heard, there are 3 restaurants right outside this hospital which serve you really good liver. Okay? There is Shivsagar right over here, which is superb liver. Chicken liver.
Anyway, so the idea of sitting around here and talking was to so there are lots of myths about the liver which we want to try and explode. Dr. Kalal will give us a few things. She's going to give us a few tips on the sort of culinary side of the liver, and Sanjeev and Suhas, who are both restaurateurs and experts, will also contribute and try and discuss this question of the liver and issues. Your job is done, sir. Yeah. He sounds like my wife. So I don't know how many people over here are doctors and who are not, but let's start with I'll start with Dr. Kalal. The most basic question on liver is that is the black coffee story. Is it really true that black coffee helps? The liver is an organ that regenerates itself, doesn't it? Unlike my pancreas. So does black coffee really help? So that's very true. The hospital for arranging this. Thank you, Dr. Chetan Kalal. Like everyone has said that they are here because of him. I am also because of him. I am here, but I'm not his patient. He tried. मेरे से एक फाइब्रो स्कैन तो करवा लो. मैं क्या नहीं करवाना. So, no, but thank you for that offer. I haven't had time, but very good question, Kunal, and I think while we have fun, I think it's a serious topic and a subject. Let me tell you that we say that ये experts बैठे हैं, ये लोग सुन रहे हैं, हम लोग हैं. I think the only person that we should listen to when it comes to health, there's only one person I can think, and you know that person. About yourself. Only listen to your body. Your body tells you everything. There are signals that are given. Liver actually is very kind. बहुत देर बाद signal देता है for something isolation. We think that it works because we have specialists. तो हमने वैसे कर लिया. So this is something which we were filming in Lucknow many years ago, and we were having lunch. Eye doctor कोई थे साथ में मस्ती चल रही थी ऐसे ही. तो then a specialist came in. एक eye doctor एक eye के दूसरे specialist आ गए. Now he said that I am this specialist of retina का ऐसे some cornea whatever. There was third person who was sitting. Oh, so you're an eye doctor. That doctor got offended. No, I'm not an eye doctor. I am cornea replacement. This, and he was really loud. And we were sitting in a restaurant. मुझसे रानी गया. मैंने कहा, अच्छा doctor, which eye, right eye or left eye? So I think in area of in day and age of specialization, we make everything complex, and that complexity is brought in so that specialists can survive. Reality is that if we keep our life simple, if we know you don't need to speak to any doctor, listen to Sanjeev Kapoor के समोसे और सैलेड में कौन सा अच्छा है? किसी को बताने की जरूरत है क्या? Samosa. Correct. So it is. I think if we look at any food, anything, we all know it. हमें सब पता है. कोई confusion नहीं है. Over a period of time, we see lot of data and we say कि अच्छा ये ऐसे है. एक डॉक्टर बोलेंगे भागोगे तो नीज खराब हो जाएंगे. Right? It's not good for you. So what I have learned over the years, Kunal, is that moderation is the key. अति किसी चीज की नहीं करनी है, and you will be fine. If you have a specific problem, then you start to address the specific. But most of the time, we want, for a normal life, we also start to look at specific things. I think that is something that we should not do. कि हम कहते हैं कि बाकी सब ठीक था, चल लिवर के लिए ये ले लेते हैं, इसके लिए ये लेते हैं, इसके लिए ये लेते हैं, इसके लिए no, don't do that. Is my suggestion and advice. अच्छा खाओ, healthy, जो घर का खाना है वो खाओ, जो आसपास उगता है वो खाओ. Normal
आ रहे हैं सुबह, देयर इज नो नीड टू टेक लिफ्ट। 3 फ्लोर पे आना है, कितने लोग चल के आए सीढ़ियों से? काफी आए हैं और काफी नहीं आए, राइट? 3 फ्लोर तक तो चढ़ के आओ, राइट? 4 नहीं, हम तो 10th फ्लोर पे रहते हैं, तो 3 फ्लोर तक चढ़ के चले जाओ, बाकी साथ में लिफ्ट ले लेना, राइट? पर वी डोंट डू दैट। उसके बाद अच्छे से सो जाओ, राइट? सो नॉर्मल फूड, गुड नॉर्मल एक्टिविटी एंड ग्रेट स्लीप, आई थिंक यू नीड नथिंग एल्स। यू नीड, और कुछ नहीं चाहिए, विल ऑल बी फाइन। बट ये सुनाई नहीं देता हमें तो चाहिए कुछ स्पेशल। ये तो सब बता देते हैं, हमें वो चीज की वैल्यू नहीं लगती है जिसमें कोई पैसे ना लगे। तो इसलिए पैसे नहीं खर्च करने हैं तो अपनी बॉडी की सुनो, पैसे खर्च करने हैं तो बाकी भी सुनो। Yeah, exactly. I just not the doctors in the room is talking about. You continue with your specialization. Very good. Why do you think I did not become a doctor? देखिए, वर्ल्ड लिवर डे 2025, पूरी बॉडी का आजकल सब लोग कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो लोग दिल की बात करते हैं, आंखों की बात करते हैं, चेहरे की बात करते हैं। लिवर जो है उसकी बातें कम होती हैं, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आज काफ़ी लोग आए। तो उसके बारे में खाना किस तरह से लिवर को हेल्प कर सकता है उसकी बातें करी। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन हुई, काफ़ी सारे लोगों से बात हुई। मुझे जितना थोड़ा बहुत पता है उसको मैंने शेयर किया। मैं कहूँगा कि जितना सादा जीवन रखेंगे, जितना सादा खाना खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना कम पैकेट में से खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जितनी खाने की शेल्फ लाइफ अगर लंबी है तो वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर मैं कहूँगा कि फ्रोज़न अगर है तो फिर भी ठीक है। बट बाकी पैकेट के अंदर से है, चाहे वो पाउच में से है, दैट इज नॉट समथिंग दैट शुड बी। कलाल साहब से खाने के ऊपर और लिवर के बारे में बात हुई। हमारी बात अक्सर होती रहती है कि क्या रिसर्च हो रही है, किस तरह से बात करनी है, वही करते हैं। इस तरह प्रोग्राम बहुत कम हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलने कर रहे हैं? नहीं, बहुत बहुत अच्छा है और हॉस्पिटल्स को करना चाहिए। थैंक यू। देखिए, लोगों का प्यार है, बड़ा आगे सच्चाई के आपको काम करेंगे तो प्यार सबका मिलेगा। और मैं अपने काम में सच्चाई रखता हूँ और दिल से काम करता हूँ। तो मेरे ख्याल से शायद यही राज है कि जो पहले प्यार चल रहा था अभी भी वो प्यार किसी के मत सुनो, अपने शरीर की सुनो, ये सबसे बड़ी। देखिए, आज 19 अप्रैल है, आज वर्ल्ड लिवर डे है और हम जो क्लिनिकल हॉस्पिटल है यहाँ पे लीवर का खास ख्याल रखते हैं। लिवर क्लिनिक हमारे यहाँ हम ये चाहते हैं, और इस साल की जो थीम है वो भी फूड फॉर फूड एज अ मेडिसिन है। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी को लिवर की बीमारी हो ही ना, और उसके लिए अगर आप अच्छी तरह से आपका खाने पे ध्यान रखें, फूड पे ध्यान रखें और तंदुरुस्ती रखें विद बैलेंस डाइट एंड ऑल, दैट इज़ व्हाट वी थॉट। और इसी की वजह से हमने इस बार जो प्रोग्राम रखा, इसमें जो सेलिब्रिटी शेफ्स है और अच्छे अच्छे लोग हैं जो जानते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ना, लेमन्स लैंग्वेज, मतलब डॉक्टर जब बोलते हैं तब शायद लोगों को ठीक नहीं लगता है, लेकिन अगर सेलिब्रिटी शेफ जैसे संजीव कपूर है, उन्होंने आके अगर बोला उसके बारे में तो लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे और बोलेंगे। ये इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये रखा है और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों ने प्रतिसाद दिया है इसको आई एम वेरी हैप्पी और हम चाहेंगे कि लोग सुने इसको और देखें और फॉलो करें। सर, आजकल लीवर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों में हो रही है, तो क्या उसके लिए भी आप लोग की आगे कोई प्लानिंग है? हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों के लीवर के लिए खास स्पेशलिटी डॉक्टर्स है, डिपार्टमेंट है और अभी ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों को डिटेक्ट किया जाता है कि उनके लीवर में डैमेज है। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों की स्क्रीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए क्लिनिकल हॉस्पिटल बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। सर, आज के समय में खाने से ही सब बीमारियां होते हैं। खाने क्या आप लगता है फूड, कौन से फूड बैड है, कौन से फूड गुड है? जो आजकल जो है ना काफ़ी सारे
आपने शायद सुना ही होगा, रणबीर कपूर जी ने कहा कि सारी चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन उनका मॉडरेशन में रहना ज़रूरी होता है। सो कोई भी चीज़ जो आपकी ज्योग्राफी में बनती है, या जैसे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन है, इंडिया में जो भी चीज़ बनती है, जो भी चीज़ हमारे पुरखों से हम लोग खाते आ रहे हैं, वो अच्छा ही और उसको मॉडरेशन में खाना, मॉडरेशन में रखना और बार बार अपने हेल्थ चेकअप करना, ये ज़रूरी है। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन शेखले, मैं CEO हूँ क्लिनिकल्स हॉस्पिटल परेल मुंबई का। क्लिनिकल्स हॉस्पिटल पिछले 13 साल से परेल एरिया में कार्यरत है और हम खास करके ट्रांसप्लांट के जो लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, इन सारे ट्रांसप्लांट में माहिर हैं। इसके अलावा भी इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दर्जा है। वी आर JCI NABH एक्रेडिटेड और बहुत सारे बड़े डॉक्टर्स जो है वो इस हॉस्पिटल से संलग्नित है और हमने आज तक बहुत सारे लोगों का इलाज किया है। करीबन 25,000 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ से एडमिशन लेके जा चुके हैं और OPD में कम से कम 2.5 लाख पेशेंट्स जो है यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं। और हम एक बड़ा ग्रुप है, मुंबई के अलावा आपको बेंगलोर, चेन्नई और मद्रास, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं। एक लास्ट सवाल सर, जब ऑपरेशन करते हैं आप, एक ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है तो क्या होता है आगे? सक्सेस बीच में अटक जाता है कोई ऑपरेशन, तो किस तरह मूवमेंट एसोसिएशन रहता है आप लोगों का? देखिए, मैं खुद ऑपरेशन नहीं करता हूँ, हमारी टीम है जो ऑपरेशन करती है यहाँ पे और टीम इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन उन्होंने पहली बार कर रहे हैं या वगैरह, तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, पूरा स्टाफ होता है, पूरी टीम होती है। अगर कोई कहीं पे अटक जाते हैं कुछ है तो पूरी टीम जो है एक दूसरे की मदद कर लेती है। तो बेसिकली मेरा नाम है डॉक्टर सुहास अवसर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, MD किया हूँ और फौजी भी था। अभी मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ मुंबई में और दुबई में, फॉरेन कंट्री में, वो अपॉर्चुनिटी वो हमारे साथ अच्छी। वी आर ट्राइंग टू गिव मैक्सिमम हेल्दी फूड टू द पीपल। तो यही अब मुझे कहना है कि फूड इज़ अ मेडिसिन और आप हर चीज़ को कंटिन्यूस एक ही चीज़ नहीं खाता रहना चाहिए और मॉडरेट में खाना चाहिए। अब मॉडरेट में खाएंगे तो मेन इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं होगा, फूड खाली खाओगे तो नहीं होगा, तो यू हैव टू एक्सरसाइज ऑल्सो लॉट। और ये जो ग्लेन एंजल्स जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हॉस्पिटल, मैं तो पूरा दूसरे हॉस्पिटल का था पहले, मुझे वो चाहता हूँ जहाँ पे डॉक्टर चेतन कलाल है, वो इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। काफ़ी सब सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने किया है, ठीक किया है उन्होंने। तो आई थिंक टुडे बीइंग वर्ल्ड लिवर डे, एवरीबडी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द लिवर। तो लिवर इज द ऑर्गन, उसको निग्लेक्ट किया टोटल। सब लोग हमें हार्ट की बारे में सोचते हैं, बट लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम लिवर का ध्यान रखने के लिए एकदम सिंपल अपने जो घर में बनते हैं चीज़ें वही खानी चाहिए, कोई फॉरेन की चीज़ खाने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, सब मानसिक होते हैं, स्ट्रेस, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप 20 साल कम से कम 7-8 घंटा सोना ही चाहिए। नो क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो नहीं है जो सिटीज़ में, जैसे मुंबई में क्वालिटी स्लीप, मॉडरेट खाना, घर का खाना जो कुछ है, और कोई भी आर्टिफिशियल खाना नहीं चाहिए। क्या बात, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो मेरा नाम डॉक्टर अमित मांडूत है, मैं यहाँ पे संचालक डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी। सो इस बार का जो थीम है फूड इज़ मेडिसिन, बिकॉज हम देख रहे हैं कि लिवर की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इंडिया जो है मेटाबॉलिक कैपिटल हो गया है। सो जो बीमारियाँ मोटापे के वजह से, खान पान के वजह से हो रही है, उसमें इंडिया बहुत ही अग्रणी हो गया है, बहुत आगे, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और लिवर उसका एक मेन ऑर्गन है जो कि अफेक्ट हो रहा है बुरे खान पान के वजह से। सो हमें ये बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो खाने पीने से मोटापा बढ़े, जिससे कि कैलोरीज बढ़े, फैट्स बढ़े, उसको हम मॉडरेशन में रखें। आई थिंक एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, मॉडरेशन मॉडरेशन मॉडरेशन। जो भी हम खाए उसको लिमिट में खाए, जो कैलोरीज हम इनटेक करें वो हम लिमिट में इनटेक करें, और वेदर इट इज़ प्रोटीन्स, वेदर इट्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। लीवर के लिए क्या ऐसा चीज़ खाएं जो लीवर हमेशा बेटर रहे? ऐसा कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है, हमें प्रोटीन्स की मात्रा अधिक रखनी है, थोड़े से जो सैचुरेटेड फैट्स है उसको कम रखना है, सॉल्ट को कम रखना है, शुगर्स अवॉइड करने हैं, और हमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक है, जो खास करके इंडियन डाइट में काफ़ी बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो थोड़ा कम करना है। सो एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, प्रोटीन्स पे ध्यान रखना है और शुगर्स अवॉइड करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।